Question number 1. Examine whether information regarding the possession of unexplained asset and income received from the Central Bureau of Investigation constitute an information under section 132. ये तो अभी अभी पढ़ा हुआ लग रहा है हम लोगों को. ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का भी है और यही क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है, राइट? क्या सीबीआई से रिसीव की हुई इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन मान सकते हैं फॉर ओपनिंग सर्च अंडर 132? आंसर इज नो. आंसर इज नो. जस्ट सीबीआई को ऐसा लगता है इसके लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी, नॉट विथ समथिंग मोर. अजीत जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेक्शन 32(1)(c) authorization for search and seizure can take place if the authority in consequence of information in his possession has reason to believe that any person is in possession of money, bullion, jewelry or other valuable article or thing, and these represents either wholly or partly income or property which has not been taken or would not be disclosed by such person for the purpose of this act. The apex court in Union of India versus Ajit Jain held that mere intimation by CBI that money was found in the possession of assessee, which according to CBI is undisclosed, without something more does not constitute an information within the meaning of section 132, and in that particular case search conducted on that basis and assessment made on that basis is not valid in law. Is not valid in law. Done, Prabhu? Question number 2. The Director General of Income Tax, DGIT, after getting information that Mogambo is in possession of unaccounted cash, issued an order invoking power vested in him under 131(1)(a). 131(1)(a) for seizure. Stop. 131(1)(a) में डीजीआईटी सीजर करना चाहता है. आपका जवाब यहीं आ जाना चाहिए. 131 के अंदर में डीजीआईटी क्या करना चाहता है? सीजर करना चाहता है. क्या 131 में सीजर पॉसिबल है? नहीं. सीजर सिर्फ एक सेक्शन में पॉसिबल है और वो सेक्शन है 132. क्या तुम्हें याद है? सीजर सिर्फ एक सेक्शन में पॉसिबल है. सीजर सिर्फ एक सेक्शन में पॉसिबल है और वो सेक्शन है 132. 131 के अंदर में सीजर पॉसिबल नहीं है. आओ इंफॉर्मेशन लो, निकल जाओ. समझ में आ रही बात? सीजर यहां पे पॉसिबल नहीं है. सीजर सिर्फ 132 में पॉसिबल है. इज द ऑर्डर फॉर सीजर of cash issued by DGIT is correct? If not, जवाब यही आ गया no. DGIT have any other power to seizure? हाँ, पहला जवाब है no. पावर टू सीज चाहिए तो डीजीआईटी को 132 में भी पावर है कि वो सीज कर सकते हैं. तो अगर डीजीआईटी को क्या सीज ही करना है तो जो ऑर्डर होना चाहिए वो 132 का होना चाहिए. क्या लिखना होगा हमें? हमें सबसे पहले 131(1)(a) लिखना होगा कि भैया इसके तहत हम इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं. 132 लिखना होगा और उसके बाद में इसका कंक्लूजन देना होगा. The power under 131(1)(a) deals with the discovery and production of evidence. They do not confer the power of seizure of any cash of asset. The DGIT, for the purpose of making inquiry or investigation relating to any income concealed or likely to be concealed by any person or class of person within his jurisdiction, shall be competent to exercise power conferred under 131(1), which confines to discovery and inspection, enforcing attendant, compelling the production of books of accounts and other document and issuing commission. Thus, the power of seizure is not the power conferred to DGIT under 131(1)(a). However, under 132, DGIT has the power to authorize any AD, AC, JD, JC to seize money found as a result of search if he has reason to believe that he is in the possession of money which represents wholly or partly income which has not been disclosed. Therefore, proper course open to the DGIT to exercise the power under 132 and authorize the officer concerned to enter into premises where cash is kept and seize such unaccounted cash. Seize such unaccounted cash. Done, Prabhu? Done. Question number 3. ये क्वेश्चन काय के ऊपर बेस्ड है? ये आपको सेल्फ करना है मालिक.
ये क्वेश्चन काय के ऊपर बेस्ड है, सेक्शन 132 के अथॉरिटीज पे बेस्ड है कि 132 में कौन कौन सी अथॉरिटीज है जिसको अलाउ है सर्च करना। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन है, क्या जेसीआईटी एम्पावर्ड है क्या? कल ही हमने 132 में पढ़ा था जेसीआईटी एम्पावर्ड है ओनली इफ दीज आर ऑथराइज्ड बाय सीबीडीटी। तो बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, आप पढ़ के भी समझ जाओगे। यहां पे देख लीजिए वो क्वेश्चन है, देयरफॉर however a joint commissioner can issue the warrant of authorization only if it has been specifically empowered by CBDT. therefore CBDT को राइट नहीं है, इतना ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे 4 टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जी हां, जिसे 4 टाइम एग्जामिनेशन के अंदर में पूछा गया है, और इसी कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर्च के अंदर में आते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है रिलीज ऑफ सीज्ड एसेट, सेक्शन 132B, रिलीज ऑफ सीज एसेट। याद आ रहा है आपको? जब भी सीज करके लाया एसएससी 1 महीने के अंदर में अगर एप्लीकेशन कर देता है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी होगी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट स्पेसिफाइड, वो रिकवर कर लेगा। यस और नो? वो क्या करेगा? रिकवर करेगा, और बाद में अप्रूवल लेगा हायर अथॉरिटीज का, और उसके बाद ही उसे क्या करेगा, वो रिलीज करेगा विद इन 120 डेज। याद आ रहा है आपको? वो पॉइंट पे ये क्वेश्चन है। Cash of 25 lakh was seized in September 20 in a search conducted as per section 132. The assessee moved an application on 27/10/2020. 1 महीने के अंदर ही उन्होंने एप्लीकेशन किया है कि जरा देखिए। टू रिलीज सच कैश आफ्टर एग्जामिनिंग द सोर्स देयरऑफ, 1 महीने के अंदर में नहीं किया हुआ है। बट 1 मंथ कहां से होता है? 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सर्च इज डन, तो वो 1 महीने के अंदर है। Which was turned down by the department. The assessee seek your opinion as to following issue. Can the department withhold the explained money? General answer is yes. अगर उनको लगता है कि बॉस ये अमाउंट रिकवर नहीं होने वाली, if yes, then up to what extent? जब तक कि आप रिकवर नहीं कर लेते, एक बार आपने रिकवर कर लिया, आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया डिपार्टमेंट को, ये कहां से आया था, कैसे आया था, अप्रूवल ले ली। 3 चीज होनी चाहिए, एक आपने सारी लाइबिलिटी का अमाउंट बाजू कर लिया हो, डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे दिया हो, अप्रूवल दे दिया हो, ये 3 चीज हो गई। इसके बाद मैक्स 120 डेज के अंदर में आप रिलीज कर सकते हो। वही पॉइंट लिखा। प्रोविजो टू 132B, सेक्शन नंबर याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रोविजो टू 132B प्रोवाइड्स दैट where a person concerned makes application to the AO within 30 days from the end of the month in which asset was seized for release of the asset, and पहली चीज क्या होनी चाहिए? एप्लीकेशन। पहली चीज क्या होनी चाहिए? एप्लीकेशन। एंड नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्विजिशन इज एक्सप्लेन्ड। दूसरा क्या होना चाहिए? उन्होंने एक्सप्लेन करना चाहिए। टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ AO, देन the AO may with prior approval of PCIT, PC और कमिश्नर। तीसरी चीज क्या होना चाहिए? अप्रूवल। आप पहले एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन देने के बाद उसका सोर्स एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद इसका अप्रूवल लेंगे। देन आफ्टर रिकवरिंग द एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, इसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा? लाइबिलिटी रिकवर की जाएगी अंडर द एक्ट out of such asset of any existing liability, however does not include advance tax payable. Such asset or portion of asset has to be released within 120 days from the date of last authorization of search under 132 was executed. In this case, since application was made to the AO within 30 days, period amount of existing liability may be recovered out of asset and the balance may be released within 120 days from the date on which last authorization was executed. Note, it may be noted that one of the condition mentioned above for release of asset is that nature and source should be explained to the satisfaction of AO. However, in this case, it has been given that assessee's application for release of asset explaining the source thereof was turned down by the department. If the application is turned down by department due to the reason it was not satisfied with the explanation given by assessee, then asset cannot be released since condition mentioned above is not satisfied. हालांकि ये नोट आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऊपर आंसर खत्म हो गया। ये इन जनरल आपको मैंने लिख करके दिया है कि बॉस क्या होना चाहिए था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे करेंगे सर? सेल्फ करेंगे। पूरा का पूरा काय पे बेस्ड है? सेक्शन 132 पे बेस्ड है। पूरा का पूरा क्वेश्चन सर्च के ऊपर बेस्ड है। इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इन द कोर्स ऑफ सर्च asset were seized. Examine the procedure laid down to deal with such seizure of asset. किस सेक्शन की बात कर रहे हैं? 132B कि असेट जो सीज हुए उसके साथ डील कैसे करेंगे, जो असेट सीज किए गए उसके साथ डील कैसे करेंगे। 132B 4 कंडीशन। पहले क्या करो? एप्लीकेशन करो, सोर्स एक्सप्लेन करो, अप्रूवल लो, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी रिकवर करो। ये 4 ही चीज हो गई तो इसके बाद असेट को रिलीज कर दो विद इन 120 डेज फ्रॉम द ये 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ सर्च अंडर 120। इसके साथ इस तरह से डील किया जाएगा। चेक कीजिएगा, वही क्वेश्चन है वापस से, पर क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा है, केस स्टडी के फॉर्म में नहीं पूछा है। क्वेश्चन वही है, डायरेक्टली नहीं पूछा है। 132B deals with the application of seized asset. Such asset shall be first applied towards existing liability under the Income Tax Act. However, it does not include advance tax. ये जब existing liability लेते रहेंगे इसमें advance tax हम collect करेंगे नहीं। Further, the amount of liability determined on completion of assessment, including penalty, interest, etc. And in respect where assessee is default or deemed to be default may be recovered out of such asset. ठीक है। Where the nature of source is explained to the satisfaction of AO, the amount of any existing liability may be recovered out of such asset, and remaining portion, if any, of the asset may be released with prior approval of commissioner. The release must be made within 120 days from the date of last authorization for search under 132 or requisition under 132A was executed. The asset was released to person whose custody they were seized. When the asset consists only of money, partly of other asset, the AO officer may apply such money in discharge of liability, and assessee shall discharge such liability to the extent money so applied. However, asset other than money may be applied for discharge of such liability if complete recovery could not be made from money seized or the money seized was not sufficient. मई 2017 के ऊपर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था जरा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, डील करने लायक क्वेश्चन है। तो एज ऑफ नाउ हम 7th क्वेश्चन पे आ गए और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं मैंने, 3rd और 5th। 7th क्वेश्चन, एओ एंटर्ड अ होटल रूम, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। एओ एंटर्ड अ होटल रन बाय अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन एट 8 PM फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। 1 मिनट, किसी बिजनेस प्रीमाइसेस पे जा रहे हो फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट। द होटल इज केप्ट ओपन फ्रॉम 9 AM to 9 PM. The hotelier claims that the AO could not enter the hotel after sunset. The AO want to take away with him books of accounts kept at the hotel. Examine the validity of the claim made by the hotelier and proposed action of AO अंडर 133B। स्टॉप, 133B के ऊपर क्वेश्चन है और आई थिंक दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको अब तक के जवाब आ चुका होगा। मेरे बच्चे बोलो हाँ, बोलो मुझे बच्चे आपको जवाब आ चुका है या नहीं आ चुका है? बिल्कुल आ चुका होगा। पहला, अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं और ये बिजनेस प्रीमाइसेस है तो उस पर कभी भी जा सकते हैं व्हेन द टाइम इट इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हमारा असेसिंग ऑफिसर गया है 8 बजे, एट दैट टाइम द बिजनेस इज ओपन फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, काम खत्म, इट इज अ वैलिड एक्शन बाय एओ, असेसीज कंटेंशन इज नॉट करेक्ट। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, एओ बोलता है भाई मैं इधर से क्या लेके जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर के जाएगा। एओ कंटेंट दैट ही विल टेक अवे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच इज नॉट पॉसिबल। अंडर 133B, assessee could only collect the information and cannot impound the books of accounts. For impounding books of accounts, he can either go with the survey or he can go with the search. सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड हो सकती है, 133 है नॉर्मल सर्वे वाला। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या तो फिर सर्च, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हाथ लगाने का नहीं, इन शॉर्ट उठा के लेके जाने का नहीं। सो एज पर 133B,
As per 133B, income tax authority has a power to enter at any business premises during the hour at which such premises is open for conduct of business. Hotel is open from 9 a.m. to 9 p.m. for conduct of business. The AO entered the hotel at 8 p.m. which fall within the working hour. The claim made by hotelier to the effect that AO could not enter is not in accordance with law. So the claim by hotelier is not accordance with law. 133B, income tax authority acting under 133A on no account remove or cause to remove from place where is entered any books of account. Hence, the proposal of action of AO to take away the books of accounts is not valid in law. Is not valid in law. उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आ रहा है, भले आप लिख नहीं रहे हो. रेगुलर लेक्चर होता बेटा पूरे एक एक आंसर लिखाता तुमसे, पर हाँ फास्ट ट्रैक के अंदर में भी मैं इस बात की कमी नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे नॉलेज में कहीं कमी आ जाए या तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आए उस पार्ट को पढ़ के. पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी इसके अंदर में कवर किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ May 2018 न्यू सिलेबस क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. सिमिलर क्वेश्चन है साहब. डन बेटा. क्या क्वेश्चन है, किस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन है? आई थिंक वही एप्लीकेशन ऑफ सीज एसेट पे बेस्ड है. चेक कर लो. आप देखिए इस पूरे चैप्टर के अंदर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फोकस करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा 132B के ऊपर फोकस करना है, एप्लीकेशन ऑफ सीज एसेट, क्योंकि मेरे को मालूम था इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. डन. अ सर्च एज पर 132 वॉज कंडक्टेड ऑन January 20 and cash of 40 lakh was seized. Assessee moved an application on 31/2020 to release such cash with explanation of the nature and source thereof, which was turned down by the department, and now the assessee seek your advice as to whether he can withhold the money. I think it is the same question, question number 2. वापस से फिर उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे. Not question number 2, क्वेश्चन नंबर 4. सेम क्वेश्चन, दो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. तो कोई बच्चा कहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, आपके सामने देख लीजिए साहब जवाब है. ओ माय गॉड, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन थे. यस, तो चलो मालिक हमारा सर्च एंड सीजर भी क्वेश्चन खत्म हुआ. सर्च एंड सीजर के ऊपर बेटा इतने क्वेश्चन अवेलेबल थे, ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए. कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास के अंदर में रेगुलर में लिए हुए हैं, राइट, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं इफ यू वांट टू सी. और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर करना है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन ओपन करके देख लो, उसके अंदर में भी आपको एडिशनल क्वेश्चन मिल सकते हैं. बट मेरे हिसाब से सफिशिएंट इनफ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा इसके एडिशन में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और देखो मैं आपको एक और बात बताता हूं, इनकम टैक्स एक ऐसी चीज है जहां पे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. बराबर है. ऑलमोस्ट हर ऑथर की बुक में आपको दिख सकते हैं मोर और लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन के ऊपर ना ध्यान देकर के कंसेप्ट्स के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन कैसे भी तुमको डील कर ही देगा. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप फाइनल में आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स में हर साल अमेंडमेंट आते हैं. पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपको यह समझने के लिए है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं. कंसेप्ट अगर आपका फुलफिल्ड है ना बॉस, कंसेप्ट तेरे दिमाग में है तो फिर बस काम खत्म हो गया. तेरे को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितनी बुक देखूं, इस बुक में तो इतने क्वेश्चन है, उस बुक में उतने क्वेश्चन है. अरे बॉस कंसेप्ट के ऊपर मल्टीपल दिमाग लगा, क्वेश्चन हर जगह ही मिल जाएंगे तेरे को. एंड मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, ये जो क्वेश्चनर है प्लस आपके मॉड्यूल है, ये दो भी आपने देख लिए तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा. और जब आप फास्ट ट्रैक ले रहे हो, सुपर 35 ले रहे हो, इसका मतलब क्लियर है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है. स्टिक टू वन पर्टिकुलर बुक, इस क्वेश्चनर के साथ स्टिक कर लो, गेम ओवर. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, भाई तेरा बैठा है, टेंशन नहीं लेना. इसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा कोई बुक देखता है, बिकॉज मैं जानता हूं फाइनल में वो मल्टीपल बुक देख सकते हो,
कहीं का चटकते हो बिंदास व्हाट्सएप करना, भाई हेल्प करेगा, बिंदास, मैं तेरे को हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर है बेटा, अपने को इस अटेम्प्ट में अपना नाम के आगे प्रीफिक्स लगाना ही है, अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। चल बेटा